So welcome to the students for the last lecture of this topic. जो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो टॉपिक था मेरा फ्लो थ्रू पाइप, इसमें मैं ये इसका लास्ट लेक्चर होगा और उसके बाद देन वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट वी विल डिसाइड लेटर ऑन दैट व्हाट टॉपिक वी विल टेक. लेकिन इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स जो होंगे वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के कुछ पार्ट आपका लेक्चर्स में कुछ पार्ट आपका रह गया था, जहाँ पे मोर सर्कल तक मैंने कुछ लेक्चर्स दिए थे आपको. अप टू मोर सर्कल वी हैव कंप्लीटेड कम्प्लेक्स स्ट्रेसेस के एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का जो पार्ट था वो हमारा रह गया था, क्योंकि उसके बाद मैं एकदम शिफ्ट हो गया ऑन द डिमांड ऑफ सम स्टूडेंट्स दैट फ्लूइड मैकेनिक्स के ये टॉपिक करवा दीजिए. सो आज जो मेरा इसका है लास्ट लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पावर ट्रांसमिशन थ्रू द पाइप. जो मेरा ये लेक्चर होगा दैट इज पावर. जो आपका लेक्चर है आज हम डिस्कस करेंगे पावर ट्रांसमिशन through the pipes. You understand? So this is my lecture today, power transmission through the pipes. So you can say that this is another feature when the water is flowing through the pipes from one point to another point under pressure. So power can be transmitted. You understand? Or you can say there is the transmission of the power also. अभी तक जो हम इसका पढ़ते थे कि pipes are used for carrying the water from one point to another point to, you can say, give the supply to the different locations which we need here. बट इन दिस केस ये जो आपका है, इसके अलावा जो इसका जो फंक्शन है दैट व्हेन द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप, यू कैन से दैट द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एंड दिस पावर ट्रांसमिशन एज सच यू कैन से दैट दिस पावर ट्रांसमिशन कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर मैनी important purposes, or you can say that for the working of the hydraulic machines. जो हाइड्रोलिक मशीन्स में वर्किंग होती है वो उसमें भी जैसे हमारा टर्बाइन्स है एक्स्ट्रा, तो वहाँ पर हमारी जो पावर ट्रांसमिशन हम करेंगे, जो पावर ट्रांसमिशन आपकी होगी वो कैसे होगी? थ्रू पाइप होगी. व्हेन द फ्लूइड flows through the pipe, or you can say when the liquid or water flow through the pipe from one point to another point, so power can be transmitted, right? So power आपकी transmit होगी from one point to another point. So that power, you can say that that power is the hydraulic power, right? And this hydraulic power that can be used for in the working of the various hydraulic machines. तो आज हमारा पावर ट्रांसमिशंस जो इसका सेकंड पर्पस था कि जब पानी जो है पानी और कोई भी लिक्विड पाइप्स के थ्रू फ्लो करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, सो पावर कैन बी ट्रांसमिटेड. Or you can say that there is the transmission of power from one hydraulic power, not power, you can say hydraulic power from one point to another point, right? तो इसमें this is very small topic, very you can say, तो इसको लास्ट टॉपिक था, इसको हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं. यू अंडरस्टैंड? सो देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इज योर वाटर टैंक like this.
and the pipe is connected. One end of this is your pipe, right? This is your pipe. So pipe is connected. One end of the pipe is connected to the source of the water. तो सोर्स जहाँ पे मैंने क्या लिया है, वाटर टैंक है, तो एक पाइप का जो एंड है वो कनेक्टेड है, एंड सो दिस इज अनदर एंड, यू कैन से आउटर एंड ऑफ द पाइप, राइट? सो से ये आपका पॉइंट ए है एंड दिस इज पॉइंट बी, एंड दिस you can say this is the length of the pipe. Suppose we are having the length of the pipe, तो length of the pipe तो definitely आपके पास होगा ही. So length of the pipe, this is equal to L, and if I say diameter of the pipe, this is equal to D. You understand? And the head at the inlet of the pipe, this is given as H. You understand? So this is the, so here we are discussing to find the power transmitted through the pipe. This is your tank which is filled with the water, and the pipe, say pipe AB, its diameter is small d, length is L, and one end of the pipe that is connected with the tank and the other end is free, or you can say that the water is flowing from point A to B. You understand? So this is your outer, you can say outer end of the pipe, right? तो ये आपका outer end होगा पाइप का. So this is, you can say this is your inlet of the pipe, and this is outlet of the pipe. You understand? This is outlet of pipe, right? So हमें क्या find out करना है? We have to find out the power transmitted, right? हमें क्या find out करना है? We have to find the power available at the end of the pipe. First, that is the power available at the end of pipe. तो जहां पे कितना पावर होगा, दिस वी हैव टू फाइंड आउट, राइट? तो फॉर दिस पर्पस, the water which is flowing through the pipe, definitely it is having its weight. You understand? So you can say that a power जो आपकी है, that depends upon, किसके ऊपर डिपेंड करेगी? पावर, or you can say hydraulic power, hydraulic power depends upon two factors. दो फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर ये हाइड्रोलिक पावर डिपेंड करेगी. पहला आपका क्या है? वेट ऑफ द वाटर फ्लोइंग, जो पानी वाटर आपका पाइप से फ्लो कर रहा है, वेट ऑफ द वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड, और यू कैन से दैट द
flowing water का weight per second, weight of the water, that is, or not, weight of the water flowing per second लिखने, weight of the water flowing through the pipe, right? And second है head available at the outlet of the pipe. You understand? Head available outlet of the pipe are at the end of the pipe. You understand? So these two parameters जो याद रखने हैं, इन दो पैरामीटर्स के ऊपर हमारा पावर डिपेंड करता है. यू अंडरस्टैंड दिस? पावर और हाइड्रोलिक पावर डिपेंड्स ऑन किसके अबाउट? वेट ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप, and the second one, head available at the end of the pipe, or you can say at the outlet of the pipe. तो इन दो के ऊपर और जो हमारा डेफिनेशन, जो हमारी कैलकुलेशंस होंगी वो क्या होंगी? इसके ऊपर होगी. यू अंडरस्टैंड दिस? वेट ऑफ द वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड एंड नाउ अंडरस्टैंड. देखिए पहले हम देखते हैं हेड अवेलेबल एट द outlet of pipe. We have to find the head at this point, you can say, at this section. Head available at the outlet of the pipe. You understand? अब इसको देखते हैं. जो आपका हेड आपका है, हेड at the inlet of pipe, ये तो हमें मालूम होगा. You understand? Head at the inlet of pipe से जे मैंने कितना है? This is the head at the inlet of the pipe, that is equal to h. You understand? You can say that the distance from the central axis of the pipe to the free surface of the water in the tank, that is head at the inlet of the pipe, this is equal to h. You understand? Now just understand, जहां पे तो हेड आपका h था. Now we have to find the head at this point, कि इस पॉइंट के ऊपर कितना हेड होगा. At point V, we have to find the head. Just understand the concept here, as the water is flowing through the pipe AV. You understand? As the water is flowing through the pipe AV, or as we have already discussed so many times, there is the friction head loss. जो मेजर लॉस होगा जहाँ पे जब वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप, तो मेजर हेड लॉस क्या होगा? दैट इज द फ्रिक्शन हेड लॉस जो है, दैट इज द मेजर हेड लॉस. यू अंडरस्टैंड? एंड माइनर हेड लॉसेज हम इस केस में वी आर नॉट कंसिडरिंग. Just we can say that this is negligible as compared to the major head loss, right? तो अगर आपका friction head loss, or you can say head loss due to friction, ऐसे लिख लीजिए, head loss due to friction, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा? से HF. अगर हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन HF है तो आपका देयरफॉर हेड लॉस at had loss at the
आउटलेट ऑफ पाइप, टोटल हेड आपका जो होता है जहां पे इनलेट पे एच था, हेड लॉस जो है ड्यू टू फ्रिक्शन, दिस इज आई से एच एफ, तो हेड लॉस एट द आउटलेट ऑफ द पाइप, दिस इज इक्वल टू एच माइनस एच एफ. You understand? H minus HF, that is the head loss at the outlet of the pipe, or you can say that at point B. At point B, जो head loss आपका होगा, this is H minus HF. You understand this? So head loss we have calculated. Second, we have to find the weight of the fluid or weight of the liquid flowing per second. You understand? सेकेंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये करना है, दैट इज वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर second through the pipe, right? Weight of the water flowing per second through the pipe, तो जे किसके बराबर होगा, दैट इज रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम of water per second, volume of water per second flowing through the pipe, right? Flowing through the pipe. You understand? So you can say this is rho into g. Volume क्या होगा? That is area into velocity. You understand? That is A into B, right? A into B. Or you can say, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, रो इंटू जी पाई बाई 4 टी स्क्वायर इंटू बी. यू अंडरस्टैंड? तो जे आपका आ गया वेट ऑफ द वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द पाइप, ये आपका आ गया डब्ल्यू. यू अंडरस्टैंड? जे एफ का क्या आ गया, W. You understand this? Head loss at the outlet of the pipe, that is H minus HF, and the weight of the pipe, this is this one. You understand this? Now, अब क्या निकालना है, द पावर ट्रांसमिटेड एट द आउटलेट ऑफ pipe. You understand? So we have to find power transmitted at the outlet of the pipe. तो ये आपका किसके बराबर होता है, दैट इज P is equal to, you can say, weight of the water per second. कौन सा weight of the water per second which is flowing through the pipe into
into head loss at outlet of pipe. You understand? Head loss at outlet of the pipe. So therefore, और ये वैल्यू जो होगी ये किस में होगा? ये वॉट में होगा. दिस वैल्यू इज वॉट, राइट? तो वेट ऑफ द वाटर पर सेकेंड ये आपका आ गया रो इंटू जी इंटू पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू बी. दिस इज द weight of the water per second, and so what is your head loss? This is equal to h, इसको ब्रैकेट में ले लो, h माइनस एच एफ था पहले, आप h माइनस एच एफ ले लीजिए, राइट? h माइनस एच एफ. तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पावर आपका H माइनस एच एफ क्या है? हेड लॉस एट द आउटलेट ऑफ द पाइप, दैट इज रो इंटू जी इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू बी. ये क्या है? एरिया इंटू वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू डिस्चार्ज. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू इंटू एच माइनस एच एफ. और अगर हम इसको डिवाइडेड बाई 1000 करें तो ये आपका आ गया किलोवाट. यू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज द रिलेशन ऑफ द पावर ट्रांसमिटेड through the pipe. You understand? This is the relation of the power transmitted through the pipe, that is P is equal to rho GQ. H minus HF क्या होगा? Head loss at the outlet of the pipe. You understand? H minus HF, that is the head loss at the outlet of the pipe, divided by 1000. क्यों किया? Because ये जो ऊपर था relation, this is in watt and kilowatt में इसको करने के लिए we divided this one. तो एक तो ये आपका आ गया पावर ट्रांसमिटेड का फार्मूला. यू अंडरस्टैंड? ये आपका आ गया पावर ट्रांसमिटेड का फार्मूला. जहां तक चीजें क्लियर हैं आपको? अब देखिए, सेकंड चीज है कि वी हैव टू फाइंड द एफिशिएंसी. अब देखिए एफिशिएंसी इसकी निकालते हैं. जहां तक चीजें क्लियर हैं, व्हाट आई डोंट, जहाँ पे नथिंग, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ज़्यादा कोई कंसेप्ट नहीं था. दिस इज अ सिंपल डेरिवेशन यू कैन से. फर्स्ट आई वाज थिंकिंग दैट आई लीव दिस लेक्चर and go for the another topic, new topic, but this is somewhat important also. So this is a very small topic you can say. इसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है. अगर आपको पावर फाइंड आउट करना है तो क्या करना है? एक तो जो वेट ऑफ द वाटर विच इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाई द पावर एट द आउटलेट ऑफ द पाइप. आउटलेट ऑफ द पाइप कैसे निकालेंगे? जो आपका हेड होगा एट इनलेट, तो ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा? देयर इज अ फ्रिक्शन लॉस थ्रू द पाइप फ्रॉम ए टू बी, एंड इफ वी विल माइनस द फ्रिक्शन लॉस फ्रॉम द हेड एट द इनलेट, that you will get the head at the outlet. You understand? So ये आपका आ गया यहाँ पे पावर का. अब इसमें एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन. एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन, इसकी हम एफिशिएंसी अगर निकालना है तो इसका भी एक छोटा सा फार्मूला है.
तो एफिशिएंसी हम पावर ट्रांसमिशन की निकालेंगे. एफिशिएंसी, दिस इज डिनोटेड बाई दिस साइन हियर, एंड दिस इज इक्वल टू efficiency, this is equal to power available at the outlet of the pipe, power available at the outlet of pipe divided by the power available at inlet of pipe. You understand? The power available at the outlet of the pipe divided by the power available at the inlet of the pipe. तो क्या होगा? पावर अवेलेबल एट द आउटर ऑफ द लाइट, वेट ऑफ द वाटर पर सेकेंड इनटू हेड अवेलेबल एट द हेड एट आउटलेट ऑफ pipe divided by weight of the water, weight of the water per second into head at inlet of the pipe, right? Head at inlet of pipe. You understand? तो weight of the water ये कैंसिल हो जाएगा आपका. तो therefore efficiency head at outlet of the pipe, that is head, ये लिख लो ऐसे ही, head at outlet of pipe divided by head at inlet of the pipe, head at inlet of the pipe. तो head at outlet of the pipe कितना है? कि अभी अपने निकाला H माइनस HF, और head at inlet of the pipe कितना था? ये आपका H है, तो ये आपका हो गया एफिशिएंसी का फार्मूला. यू अंडरस्टैंड? H minus HF divided by H, right? So this is the efficiency of the pipe. You understand? अब हम देखेंगे यहां पे condition for maximum transmission of the pipe. कंडीशन फॉर, ये मिटा देंगे, ये आपका ठीक हो गया, इसको भी आप नोट कर लीजिए. कंडीशन फॉर so condition for maximum transmission of pipe. Condition for maximum transmission of the pipe that we have to find out.
तो देखिए, तो P तो आपको पता है, अभी हमने निकाला था, रो जी इंटू रो जी क्यू, रो जी ये था π/4 डी स्क्वायर क्यू की जगह ये लिख लें हम बी, π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू बी एच माइनस एच एफ, यही फार्मूला था। ये मैंने ले लिया था आपका, ये क्या था आपका क्यू था, तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा। आर यू कैन से आर, पी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इंटू जी इंटू π/4 डी स्क्वायर इंटू बी एच माइनस एच एफ को हम ऐसे लिखे, फ्रिक्शन हेड लॉस का फार्मूला हमें मालूम है, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 4 FL B square upon 2GD. L is the length of the pipe, D is the diameter of the pipe, and F is the friction coefficient. You understand? So we can write this formula like this. R P is equal to rho G π/4 D square. B जो वेरिएबल है इसको आप अंदर ले जाइए, दैट इज BH माइनस 4FL BQ अपॉन 2G। यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये आपका, अब फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी की जो कंडीशन होगी, हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट P with respect to B and equate the differentiation, this is equal to 0. Differentiate P with respect to B and that is आप कह सकते हैं dP upon dV, और यू कैन से इस तरीके से लिख लो, d upon dV P एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेट करो इस इक्वेशन को 0 के साथ। यू अंडरस्टैंड दिस? तो आप इसका डिफरेंशिएशन ले लीजिए आप, ये क्या आएगा, dP अपॉन dP। अब देखिए ये सारी टर्म्स जो हैं, दिस रो जी π/4 इंटू डी स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट, तो इसको आप इसी तरीके से लिख लें आप, रो इंटू जी इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर, ये ऐसे ही बाहर रहेगी। और ये जो टर्म्स हैं अंडर, इसका आप डिफरेंशिएशन ले लें, क्या आएगा, बी एच है जहाँ पे, तो हम इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू वी कर रहे हैं, दैट इज एच माइनस 4 इंटू 3, बिकॉज बी क्यूब ही जहाँ पे होगा 3V स्क्वायर, बाकी तो सारे कांस्टेंट हैं, 4 इंटू 3 इंटू आप 3 को पहले लिख लीजिए, दैट इज 3 इंटू 4 FL B स्क्वायर, राइट, बी क्यूब का 3V स्क्वायर अपॉन 2GT। You understand this? And that we are saying कि dP upon dV that should be equal to 0, तो आप इसको आप जहाँ पे इक्वेट 0 भी साथ में कर लीजिएगा। You understand this? अब देखिए 0 को इक्वेट किया तो ये टर्म्स जो है ये सारी की सारी क्या होगी, 0 होगी। तो इक्वेशन जो आपके पास बनी वो क्या थी, H माइनस 3 इंटू 4FL
बी स्क्वायर अपॉन 2GD, right? This is equal to 0, right? H minus 3, तो ये वाला पोर्शन मिटा देते हैं। उसके बाद अब जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ये क्या है आपका, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म फिर HF ही है ना, राइट? दिस टर्म इज HF। तो हम ये इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन को, ये जो आपकी इक्वेशन यू कैन से ये वाली इक्वेशन थी फर्स्ट, वी कैन रीराइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, दैट इज H minus 3 HF। इसकी जगह हम HF लिख सकते हैं, फ्रिक्शन हेड लॉस, उसका फार्मूला यही है 4FL V स्क्वायर अपॉन 2GD, दिस इज इक्वल टू 0, राइट? और H is equal to 3HF, therefore HF friction head loss, this is equal to HY3. You understand this? So this is the condition for the maximum transmission of the pipe. Maximum transmission of the pipe का क्या condition होगा कि जो आपका head loss है, friction head loss in the pipe, that should be equal to the head loss, 1/3 of the head loss at the inlet. You understand? That should be equal to the 1/3 of the head loss at the inlet. So this is the condition for maximum efficiency. You can say this condition for maximum, okay, you understand, this is the condition for maximum efficiency. तो ये भी आपका हो गया कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगा कि जो आपका फ्रिक्शन हेड लॉस होगा that should be equal to the 1/3 of the head loss at inlet. You understand? So this is the condition for the friction head loss. अब आ जाएगा एफिशिएंसी फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर। अगर मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर हो तो उस वक्त हमारी एफिशिएंसी कितनी होगी? यू अंडरस्टैंड? एफिशिएंसी फॉर maximum efficiency for maximum transmission of power. हमें क्या निकालना है? एफिशिएंसी निकालना है फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ द पावर। अब देखिए एफिशिएंसी हमने अभी निकाला, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर अभी हमने निकाला, वो क्या था आपका H minus HF divided by H. You understand? So efficiency for, so this is efficiency H minus HF upon H. You understand? ये तो हमने अभी निकाला, ये एफिशिएंसी क्या है। but for मैक्सिमम ट्रांसमिशन, अगर मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर, मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर, उस वक्त हमारा जो हेड लॉस था, अभी मैंने इसको किया था, हेड लॉस आपका किसके बराबर होता है? टोटल हेड एट द इनलेट divided by Hy3, that is 1/3 of the total head loss at inlet. And because we are calculating the maximum efficiency
एफिशिएंसी फॉर द मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर, तो हमारा जो हेड लॉस होगा वो हम क्या लेंगे, H/3 होगा, बिकॉज H/3 इज द हेड फ्रिक्शन हेड लॉस इन केस ऑफ द मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर। यू अंडरस्टैंड? तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए। अब एफिशिएंसी दिस इज इक्वल टू H माइनस H/3 अपॉन H। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका आएगा 1 माइनस 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू 2/3, राइट। तो अगर परसेंटेज में हमें निकालना है तो एफिशिएंसी जो हमारी परसेंटेज में होगी वो क्या होगी, 2/3 इंटू 100, तो आई थिंक इसका 66 पॉइंट समथिंग या 67 लाइक दिस। सो दिस इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी, this is the efficiency maximum, this is the efficiency for the maximum transmission of power। you understand? efficiency अगर maximum transmission of power होगा तो उस वक्त हमारी efficiency कितनी होगी, 66.67। so these are the you can say few parameters which we need to understand, which we need to see कि आप अगर if you have to calculate the power transmitted through the pipes and then the efficiency, maximum transmission of power and the maximum efficiency, how we can calculate. So these are some relations, right, which is given here. तो जो इसका जहाँ पे जो आपका एक मेन कंसेप्ट है कि हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी, हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप from one point to another point, you remember only 2 points there. First point is that the beat of the water which is flowing through the pipe per second, and second thing that we need to find that what is the head loss at the outlet of the pipe. You understand? So you can say what is the head at the outlet of the head loss? What is the head at the outlet of the pipe? You understand? Head at the inlet of the pipe is given to you because the pipe is connected to the tank here, and we must know what is the head at the outlet of the pipe. और head जो आपका outlet of the pipe होगा, if we have to find out, तो क्या होगा, जो आपका हेड आपका इनलेट ऑफ द पाइप है, एंड इफ वी विल सब्ट्रैक्ट द फ्रिक्शन हेड लॉस बिकॉज द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप, water is flowing through the pipe, and due to friction there is a major head loss which is called the friction head loss, and this is denoted by HF. And if we will subtract H minus HF, फ्रिक्शन हेड लॉस को हम टोटल हेड जो आपका इनलेट है उसमें माइनस कर ले, तो यू विल गेट द हेड लॉस एट द आउटलेट ऑफ द पाइप. यू अंडरस्टैंड? तो पावर जो आपका है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर और द लिक्विड फ्लोइंग इन द पाइप पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई द हेड एट द आउटलेट ऑफ द पाइप. यू अंडरस्टैंड? तो वेरी इजी, वेरी स्मॉल आपका ये डेरिवेशन था, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी. और इसमें ये जो 3-4 फार्मूले हैं उसमें आप न्यूमेरिकल्स देख लीजिए. इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स कभी कभार आ सकता है, बट जो प्रोफेशनल आपका एग्ज़ाम होगा उसमें इस टॉपिक से भी न्यूमेरिकल आते हैं. यू अंडरस्टैंड? इस PYQ होगा या MSQ होगा तो वैसे क्वेश्चन आते हैं. यू अंडरस्टैंड दिस? तो अगर आप कहें तो एक कन्वेंशनल इसका न्यूमेरिकल निकाल देते हैं. यू अंडरस्टैंड दिस? एक बिकॉज द टॉपिक इज़ वेरी स्मॉल हेयर, तो इसका एक न्यूमेरिकल इजीली वी कैन कैलकुलेट. तो अभी उसका न्यूमेरिकल लिखते हैं, देन वी विल सॉल्व इट. So let us solve one problem so that the concept of the power transmission that is completely clear to you, right? तो ये आपका
एक न्यूमेरिकल है, सिंपल एक सॉल्व एग्जाम्पल थी बुक में, हम इसी को डिस्कस करेंगे और इसमें आपका क्वेश्चन किस तरीके से होगा और हमें किस तरीके से वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज विच आर रिक्वायर्ड टू बी फाइंड. यू अंडरस्टैंड? नाउ द क्वेश्चन इज, जस्ट सी द क्वेश्चन, द पाइपलाइन ऑफ लेंथ. तो लेंथ ऑफ द पाइप इज गिवन. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आपका गिवन डाटा है फर्स्ट हम उसको लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए. तो गिवन आपका है लेंथ ऑफ द पाइप कितना है. लेंथ ऑफ द पाइप मैं एल से डिनोट करता हूं अगर, तो दिस इज 2000 मीटर. यू अंडरस्टैंड? is used for power transmission. So this length of the pipe is used for the power transmission, and if this much is the power to be transmitted through the pipe. तो इसका मतलब है कि उसने पावर भी दिया है. पावर ट्रांसमिटेड हम P से डोनेट करते हैं थ्रू द पाइप. हाउ मच द पावर इज ट्रांसमिटेड? दैट इज 110.3625 kilowatt. You understand? At which the water having the pressure of power to be transmitted through the pipe, at which water having the pressure of itna at inlet. So you can say the pressure of water at inlet. Pressure of the water at inlet, this is given as 490.5 Newton per centimeter square. You understand? So pressure of the water at inlet is given, is flowing. Find the diameter of the pipe. तो फाइंड हमें क्या करना है? फाइंड हमें करना है फर्स्ट चीज डायामीटर ऑफ पाइप से D इज द डायामीटर ऑफ द पाइप. ये हमें फाइंड आउट करना है डायामीटर ऑफ द पाइप. एंड सेकंड एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द पाइप. और सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेकंड चीज हमें फाइंड आउट करनी है एफिशिएंसी. हमें क्या फाइंड आउट करना है? एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है, डायमीटर फाइंड आउट करना है. इफ प्रेशर ड्रॉप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विच इज रिटन हियर. इफ द प्रेशर ड्रॉप ओवर द लेंथ ऑफ द पाइप. क्या दिया है जी? प्रेशर ड्रॉप. ये चीज़ें हम वन बाई वन पहले डिस्कस करेंगे कि जो आपको दिया है ये, इससे आपको व्हाट यू विल गेट. प्रेशर ड्रॉप ओवर द length of pressure drop over the length of pipe, that is 98.1 Newton per centimeter square. So these things are given to you, right? ये चीज़ें सारी आपको गिवन हैं और अब हमें क्या करना है कि हमें ये उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. देखिए सॉल्यूशन में पहले है कि हमें डायामीटर ऑफ द पाइप फाइंड आउट करना है. चलो फर्स्ट हम इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको दिया गया है वो पावर ट्रांसमिटेड आपको दिया है. यू अंडरस्टैंड? इसको अंडरलाइन कर लीजिए. पावर ट्रांसमिटेड दैट इज गिवन टू यू. अच्छा अब देखिए जहां पे जो पॉइंट ये दिया है प्रेशर ऑफ द वाटर एट इनलेट. इनलेट के ऊपर जो प्रेशर दिया है पानी का, प्रेशर ऑफ द वाटर दैट इज एट इनलेट, ये हमें क्या देगा? प्रेशर ऑफ द वाटर एट इनलेट. इससे हमें क्या मिलेगा? तो पहले हम इसी से करते हैं. प्रेशर ऑफ द वाटर एट इनलेट, ये हमें प्रेशर हेड देगा इनलेट के ऊपर, राइट? प्रेशर हेड एट इनलेट, राइट? तो इससे हम प्रेशर हेड एट इनलेट करेंगे. तो प्रेशर हेड आपका इनलेट के ऊपर क्या होगा? प्रेशर हेड क्या कैसे लिखते हैं? P/ρ × G. यू अंडरस्टैंड? तो प्रेशर हेड एट इनलेट दिस इज इक्वल टू दिस वन.
अब P क्या है, दैट इज 490.5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें। तो मैं आपको ऐसे लिख सकता हूँ 490.5 इंटू 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप अगर इधर से आपको 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका बनेगा 490.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपको इस तरीके से बनेगा। तो प्रेशर हेड एट इनलेट, राइट, ये आपका आ गया प्रेशर हेड एट इनलेट। रो क्या है, इसका वाटर है, तो रो आपका हो गया 1000 एंड जी हो गया 9.81। तो प्रेशर हेड एट इनलेट अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आपका आएगा 500, राइट। तो प्रेशर हेड आपका क्या आएगा, 500 मीटर। तो प्रेशर हेड आपका आएगा 500 मीटर। यू अंडरस्टैंड? दैट इज प्रेशर हेड एट इनलेट। अब सेकंड थिंग यहां पे देखिए, एक और जहां पे दिया गया है प्रेशर ड्रॉप ओवर द लेंथ ऑफ पाइप। अब देखिए प्रेशर ड्रॉप ओवर द लेंथ ऑफ द पाइप व्हेन देयर इज ए फ्रिक्शन लॉस इन द पाइप। जब पानी आपका फ्लो कर रहा है, पानी वाटर इज फ्लोइंग इन द पाइप, एज यू नो दैट देयर इज ए फ्रिक्शन लॉस एंड ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस देयर इज ए क्या होगा, हेड लॉस होगा, राइट। ड्यू टू फ्रिक्शन देयर इज ए हेड लॉस। हेड लॉस है तो इसका मतलब है कि जो आपका प्रेशर होगा दैट विल ड्रॉप अलोंग द एक्स डायरेक्शन, जो पाइप की डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो प्रेशर आपका क्या होगा, ड्रॉप होगा। इफ देयर आर टू सेक्शन ऑफ द पाइप आई विल टेक दैट, जो आपका प्रेशर आपका सेक्शन 1 के ऊपर होगा, इफ इट इज टूवर्ड द लेफ्ट साइड, तो जो आपका प्रेशर होगा सेक्शन 2 के ऊपर क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, ड्यू टू हेड लॉस प्रेशर विल ड्रॉप हियर। तो आप वो कहता है कि प्रेशर ड्रॉप ओवर द लेंथ ऑफ द पाइप। तो इससे हमें क्या मिलेगा, प्रेशर ड्रॉप, इससे हमें फ्रिक्शन लॉस मिलेगा। HF की वैल्यू हमें जहां से भी विल कैलकुलेट, राइट, जहां से हम HF की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, लॉस ऑफ हेड। तो लॉस ऑफ हेड वी विल कैलकुलेट हियर। तो पहले आप इसको क्या करें, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, तो ये होगा 98.1 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये आपका, इसको मैंने यूनिट इसका कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इसका क्या है, हेड लॉस कैलकुलेट करता हूं, तो इसका मतलब ये हमें क्या बताएगा, हेड लॉस होगा यहां पे। तो लॉस ऑफ हेड वो दैट इज गिवन बाय दिस, ये आपको दिया गया है हेड लॉस। तो हेड लॉस जो आपका है, हेड लॉस HF, राइट, वो क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप दिया है, दिस इज 98.1 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई रो इंटू जी। तो हेड लॉस को अगर लिखना है तो हम इसको अगर ऐसे लिखें, प्रेशर ड्रॉप ओवर द लेंथ ऑफ पाइप डिवाइडेड बाई रो इंटू जी, राइट। So head loss, this is can be written as rho into G, right। तो यहां से आप इसको निकाल लेते हैं, इसको तो कोई जरूरत नहीं है अब। तो हेड लॉस आप इसको सॉल्व करें, वैल्यू इसमें पुट करें, सॉल्व करें एंड यू विल गेट द हेड लॉस। HF की वैल्यू आपको जहां पे मिल जाएगी। यू अंडरस्टैंड दिस? तो आप से लिख लिए, तो HF pressure drop over the length of the pipe, this is given as 98.1
98.1 into 10 raised to power 4, राइट, डिवाइडेड बाई रो क्या है 1009.81, राइट। तो इफ यू विल कैलकुलेट दिस कम्स एज 100 मीटर। यू अंडरस्टैंड दिस? ये कितना आएगा 100 मीटर। सो दिस कम एज 100 मीटर। आपके पास एच भी है, जहां से देखिए प्रॉब्लम में ये प्रेशर हेड एट रो, इसको ये आपका एच है। आपके पास प्रेशर हेड एट इनलेट दैट इज डिनोटेड बाई एच, एच भी है। आउटलेट में भी आपके पास हेड लॉस है, इनलेट में भी आपके पास हेड है। तो आपका क्या होगा, यू अंडरस्टैंड दिस? तो व्हाट इज हेड लॉस में अगर कहूं, हेड लॉस एट आउटलेट, हेड लॉस एट आउटलेट ऑफ पाइप क्या होगा, H माइनस HF। जो आपका हेड लॉस, फ्रिक्शन लॉस है, वो तो आपको यू हैव फाइंड आउट दिस, तो ये आपका आ जाएगा दैट इज 500। H क्या है 500, H क्या है, HF क्या है 100 है, एंड दिस इज इक्वल टू 400 मीटर। यू अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आपको हेड लॉस एट और हेड अवेलेबल, नॉट लॉस लिखेंगे, हेड अवेलेबल एट आउटलेट, यह होगा हेड अवेलेबल at head available at outlet of a pipe, this one 400 मीटर। यू अंडरस्टैंड? तो इनलेट के ऊपर भी आपको मिल गया, आउटलेट के ऊपर भी आपको मिल गया। अब देखिए जो पावर ट्रांसमिशन का जो हमारा फार्मूला था, पावर पी, वो क्या था, रो इंटू जी इंटू क्यू, राइट। हेड एट आउटलेट क्या था, H माइनस HF डिवाइडेड बाई 1000। यही फार्मूला था आपके पास, यू अंडरस्टैंड? यही फार्मूला था। अब देखिए पावर आपको दिया है, मैंने ये फार्मूला क्यों इस्तेमाल किया, बिकॉज वी हैव गॉट द पावर आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो जहां से हमें कुछ चीजें निकलेंगी, राइट। अब देखिए P इज इक्वल टू रो क्या है 1009.81 G हो गया। अब Q की वैल्यू, डिस्चार्ज हमारे पास क्या होता है पाई बाई 4 इंटू डी स्क्र, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्र इंटू बी, दैट इज एरिया इंटू वेलोसिटी, वेयर V इज द velocity, you understand? H minus HF that is 400, ये हो गया head available at the outlet of the pipe, you understand? 400 divided by 1000, you understand? Divided by 1000। यहां तक चीजें क्लियर है? तो P की वैल्यू आपको गिवन है, P की वैल्यू भी आप क्या करें जहां पे पुट कर दें, या आप इस चीज को भी आप क्यू के टर्म्स में ही रहने दीजिए। पहले हम क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। इसको क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पी आपका दिया गया है, व्हाट इज योर पी हियर, दैट इज, ये मिटा दीजिए ऊपर वाला, आप इसकी जगह भी क्यू रहने दो, राइट, इसको क्यू ही रहने दो। तो पी आपको दिया गया है, दिस इज दैट इज यस 110.81
3625, this is equal to 1000 into 9.81 into Q into 400 divided by 1000। तो जहाँ से आप Q की वैल्यू निकाल लीजिए, तो Q की क्या वैल्यू आएगी, दैट इज 110.3625 1000 that is 1009.81 into 400। तो Q की वैल्यू आप सॉल्व करके बताइए मुझे, हाउ मच यू गॉट दिस। सो Q इज इक्वल टू 0.02812। This is 0.02812 मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। तो हमारा जहां से डिस्चार्ज निकल गया। अब डिस्चार्ज तो हमारा निकला जहां से, तो डिस्चार्ज से हम क्या करेंगे, जहां से अगर मैं आपको पता है Q आपका जो है दिस इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी एंड दिस इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू बी, यही फार्मूला है। अगर मैं Q की वैल्यू जहाँ पे पुट करूँ तो मुझे B की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, बट दैट इज इन टर्म्स ऑफ डी स्क्वायर, क्योंकि D की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो डी स्क्वायर में मुझे वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी। तो Q आपका कितना था, इसको ऐसे कर लेते हैं आगे ही। Q मैंने अभी निकाला 0.02812, this is equal to π/4 d square into b, you understand, π/4 d square into b। तो अगर मैं b की कहूँ कि b की वैल्यू इसमें से क्या आएगी, this is equal to 0.02812 into 4 divided by pi divided by d square, you understand। तो मुझे आप कैलकुलेट करके बताइए ये टर्म्स। तो इन टर्म्स ऑफ डी स्क्वायर बी की वैल्यू आएगी एंड दिस इज हाउ मच यू विल गेट, दिस इज 0.0 this is 0.0358 upon d square, this is 0.0358 upon d square, right। सो ये हमारी b की वैल्यू है 0.038 अपॉन डी स्क्वायर, और ये वैल्यू आपकी मीटर पर सेकंड में होगी, दिस इज मीटर पर सेकंड, राइट। अब देखिए डी हमें तो फाइंड आउट करना है डायमीटर ऑफ द पाइप, बट द प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमें जो बी की भी वैल्यू आ रही है दैट इज इन टर्म्स ऑफ डी स्क्वायर आ रही है, अंडरस्टैंड दिस। तो आपको पता है, यू नो दिस रिलेशन, क्योंकि आपको फ्रिक्शन हेड लॉस आपने कैलकुलेट किया था 100, HF की वैल्यू पीछे क्या कैलकुलेट किया था आपने, HF किया था 100 मीटर, राइट। HF था आपका 100 मीटर, ये तो आपने कैलकुलेट किया। और अगर मैं ये फार्मूला इस्तेमाल करूं, HF is 4F
L B square upon 2 into G into D, right? HF J फार्मूला फ्रिक्शन हेड लॉस का जी आपको अकॉर्डिंग टू द डार्सी-विस्बैक इक्वेशन यू नो दैट। तो अगर मैं पुट करूं वैल्यू HF आपका कितना था 100 था, राइट? दिस इज पुट करते जाइए 4 F की वैल्यू थी आई थिंक 0.0065, लेंथ आपकी पाइप की है 2000 मीटर, राइट? तो B की वैल्यू जो दिया है क्या आ जाएगी आपकी 0.0358 का स्क्वायर, नीचे D स्क्वायर हम नीचे ले लेंगे, डिवाइडेड बाई 2 इंटू G इंटू D इंटू D स्क्वायर था ये इन टर्म्स ऑफ दिस, ये अब क्या आएगी D4, राइट? D इंटू D4, तो मैं सीधा अगर D5 लिखूं कोई फर्क पड़ता है नहीं, D5, यू अंडरस्टैंड? जहां आप कह सकते हैं 100, तो 100 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.0065 इंटू 2000 इंटू 0.0358 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81 into D raised to 5. You understand? तो जहां से हमें D5 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि देखिए B की वैल्यू मैंने निकाला इन टर्म्स ऑफ D, तो जहां पे जब मैंने पुट किया तो ये सारा के सारी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ D, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है डायामीटर ऑफ द पाइप। हमें क्या फाइंड आउट करना है? डायामीटर ऑफ द पाइप। तो ये आपका आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 100, दिस इज इक्वल टू 0. ये आप चेक करके बताइए मुझे हाउ मच इट इज कमिंग, 0.03396, 0.03396 डिवाइडेड बाई D5, राइट? डिवाइडेड बाई D5, तो इसको कैलकुलेट करें और जहां से आपको D की वैल्यू मिल जाएगी। Therefore D5 Therefore D5 क्या आएगा? D5 this is equal to 0.03396 divided by 100, or D is equal to 0.03396 by 100 raised to power 1 by 5, right? तो जहां से आपको डायमीटर ऑफ द पाइप मिल जाएगा कि जो पाइप आपका पावर कितना ट्रांसमिट करती है, जो आपको गिवन दिया गया है, एंड दिस इज इक्वल टू 0.1277, ये आपका आया 0.1277। देखिए ये सारी टर्म्स जो है मैं मीटर पर सेकंड में ले रहा हूँ, तो ये मीटर में है, और अगर इसको मैंने mm में करना तो दिस इज 127.7 mm, दिस इज द डायामीटर ऑफ द पाइप। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया कि डायामीटर ऑफ द पाइप, हाउ वी विल कैलकुलेट द डायामीटर ऑफ द पाइप। एंड द सेकंड थिंग वी हैव टू फाइंड एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये हो गया फर्स्ट थिंग, ये जहाँ पे आपका आंसर आ गया। ये जहाँ तक चीज़ें न्यूमेरिकल क्लियर हो गया। अब दूसरा हमने सेकंड पार्ट था एफिशिएंसी ऑफ पावर
ट्रांसमिशन, राइट। इसका क्या फार्मूला है, H माइनस HF डिवाइडेड बाई H, यू अंडरस्टैंड, H माइनस HF डिवाइडेड बाई F। तो H माइनस HF हमने फाइंड आउट किया था, H आपका आया था 500, ये HF आया था 100। तो अगर आप पीछे वैल्यू आप चेक कर ले तो उसमें आपको मिल जाएगा वैल्यू, दैट इज H क्या था 500 था, HF आपका 100 था और ये आपका 500 है। और इसको अगर आप करेंगे 0.80, यू अंडरस्टैंड, ये कितना आया 0.80। और अगर परसेंटेज में इसका वैल्यू निकालना है तो परसेंटेज में क्या होगा, एफिशिएंसी इन परसेंटेज, दिस इज 0.80 इंटू 100, तो ये आपका आ गया 80%, यू अंडरस्टैंड। तो इस केस में जो आपकी एफिशिएंसी आएगी दैट इज योर 80%, राइट। सो दिस इज, यू कैन से दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक नाउ। और रहे इसके PYQs और MCQ, उसके लिए एक स्पेशल लेक्चर देंगे जिसमें इसके डिफरेंट टाइप ऑफ MCQ फ्लो थ्रू द पाइप, PYQ होंगे, क्योंकि कन्वेंशनल क्वेश्चंस तो मैंने करवाए हैं। तो वहाँ पे देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं, तो वो क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, यू अंडरस्टैंड। जहाँ तक जो आपका टॉपिक था ये फ्लो थ्रू पाइप, इसमें जितना भी पोर्शन था आपका, ईच एंड एवरी पोर्शन आई हैव कंप्लीटेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। इसमें सारी चीज़ें जितने भी थे दैट वी हैव कंप्लीटेड हियर। और जो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का अप टू मोर सर्कल्स, हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे, कम्प्लेक्स स्ट्रेसेस के बारे में हमारा लेक्चर चल रहा था वहाँ पे। तो अप टू मोर सर्कल वी हैव कंप्लीटेड एंड देन वी हैव स्टार्टेड दिस फ्लूइड मैकेनिक्स का, बिकॉज आई एम गेटिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द, यू कैन से, demands from the students that start this lecture. So ultimately I just stopped that portion and I have taken this topic, but now it is complete. और जो अगला लेक्चर होगा that is strength of material and that belongs to the principal stresses, right? So thank you very much. आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ ये। और जो उसके बाद जो फ्लूइड मैकेनिक्स हम करेंगे, उसके बाद कोई बेहतरीन सा टॉपिक ले लेंगे, उसमें आपका ड्रैग एंड लिफ्ट का टॉपिक भी है, करने वाला है। और बाउंड्री लेयर इज़ आल्सो देयर, वेरी इंपॉर्टेंट। बट आई थिंक बाउंड्री लेयर करने से पहले वी हैव टू कंप्लीट द लेक्चर ऑफ द ड्रैग एंड लिफ्ट का जो लेक्चर होगा, वो टॉपिक होगा, पहले हम उस टॉपिक को, चैप्टर्स को, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। सो इसी तरीके से आप सारे मुझे कोऑपरेट करते जाइए। जल्दी जल्दी जो हमारे चैनल्स में लेक्चर हैं, जो कि मैं फ्री डिलीवर करता हूं, उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, एंड उससे ये होगा कि जो मैं जल्दी सारे लेक्चर्स जो है जल्दी लेक्चर डालता रहूँगा, यू अंडरस्टैंड दिस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड आल्सो for this that I have completed this topic, flow through the pipe, and next lecture that is from strength of material. So thank you very much.